Good morning, students. Yesterday, we learn about the three major categories of economic activity, that is business, profession, and employment. So, let us take a quick revision of it. So, what is business? Refers to the activities engaged in production, purchase, and sale of goods, supply of services carried out with the aim to earn profit. What does it mean? वो सभी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन करती हैं या परचेज या सेल करती हैं या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, सबका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, वेजिटेबल वेंडर सेंडिंग vegetables and production factory indulge in the activity of production. And next one is profession, involves activities requiring special knowledge and skills subject to guidelines or code of conduct laid down by professional bodies. What does it mean? वो सभी activities जिसमें ज़रूरत है, we required special knowledge and skills subject to the guidelines, as per the guidelines or code of conduct laid down by the professional bodies. For example, Indian doctors are subjected to guidelines laid down by the Medical Council of India, and lawyers in India are governed by the Bar Council of India. So they both have to follow the code of conduct or guidelines of their respective professional bodies. Next one is employment, refers to the occupation in which people work for others and get remuneration or salary in return. We are doing job somewhere, और ऐसा occupation जिसमें हम किसी और के लिए काम करते हैं and in return we get some remuneration or salary. For example, people employed in police force and workers of any organization. So after that, we have to do comparison between both business, profession and employment. And for this, I'm going to take an example of a prominent personalities of our India. For the business, I'm taking the example of Mukesh Ambani, who is an Indian business magnate, is the chairman and managing director of the Reliance Industry, the largest private enterprise in the India. So he is indulged in a business, he is performing the economic activity of business. And next, for the profession, I'm taking an example of Dr. Naresh Kumar Trehan. He is a renowned cardiovascular and cardiosurgeon. Do you understand with the cardiosurgeon? Some bones surgery or some bone problem diseases, has served as a personal surgeon to the President of India since 1991. President of India के लिए एक पर्सनल सर्जन की तरह उसने काम किया था. He is an awardee of Padma Shri and Padma Bhushan. So he is a doctor. So he is indulge in some professional activity as an economic activity. And the last one is employment. For this, I am taking an example of Indra Nooyi, who is a lady, an Indian born American business executive. She is the current chairman and CEO of PepsiCo company. So with the help of these three examples, I am going to do comparison between business, profession and employment on the various basis. On the first difference, it will be on the basis of mode of establishment. Business, decision of entrepreneur and other legal formalities if necessary. If you want to establish a business, हमें एक एंटरप्रेन्योर के डिसीजन और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है. एंड फॉर प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है या मेंबरशिप चाहिए होती है उसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल बॉडी की, फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर और अ लॉयर और अ CA. And an employment, appointment letter and service agreement are needed. Before joining any job, we have to indulge in some service agreement, or we will get some appointment letter. Next difference is nature of work. So in business, providing goods and services to others for consumption. हमारी क्या nature है business की? That we are indulged in the activity of providing goods and services for the consumption of the society. एंड इन द प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस. लोअर की एक्सपर्ट सर्विसेज होती है, डॉक्टर्स की होती है. तो हमारी नेचर क्या है बिजनेस की? वो लोग हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने पर्सनल एक्सपर्टीज के बेस पे. एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मिंग वर्क as per the service contract. A person who is in the job performing work as per the service contract of his job. And the third basis of difference is qualification. हमें कितनी qualification की ज़रूरत है for becoming businessman, professional or a employee. No minimum qualification is mandatory in the business. एक business चलाने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इतनी qualification होना ज़रूरी है.
ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज़ इन देयर स्पेसिफिक फील्ड, हाँ अपनी स्पेसिफिक फील्ड में उनकी प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग का लेना बहुत ज़रूरी है. एंड इन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो हमारे एम्प्लॉयर ओनर बिजनेस के हमें अलॉट करते हैं, जो वो कहते हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग की ज़रूरत है उतनी हमें लेनी पड़ती है. एंड द नेक्स्ट इज़ रिटर्न और रिवार्ड. हमें रिवार्ड पे क्या मिलता है? बिजनेस में हमें रिवार्ड पे मिलता है प्रॉफिट. इधर हमें मिलता है प्रोफेशनल फीस, वी चार्ज सम फीस फॉर देयर एक्सपर्ट सर्विसेज, एंड उसमें हमें मिलती है सैलरी और वेजेस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल इन्वेस्टेड. कितनी कैपिटल हमें ज़रूरत होती है? इन्वेस्टमेंट एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. कल भी बताया था, अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है. कैपिटल होता क्या है? अमाउंट इन्वेस्टमेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करते हुए या बिजनेस को चलाने के लिए हम जितना पैसा लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल. तो हमें इसमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है हमारे नेचर और साइज़ के हिसाब से. एंड इन द प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट. हमें एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. एंड द नेक्स्ट इज नो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. इसमें हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती. आगे आता है रिस्क ऑफ रिटर्न. हमें जो हमें रिटर्न आती है उस पर कितना रिस्क है. बिजनेस में इरेगुलर होती है, इरेगुलर एंड अनसर्टेन प्रॉफिट एंड रिस्क एग्जिस्ट एट एवरी स्टेप. हर स्टेप पे रिस्क होता है और जो प्रॉफिट होता है वो इरेगुलर और अनसर्टेन होता है. वी डोंट नो कब कितना प्रॉफिट हो या लॉस हो. नेक्स्ट इज प्रोफेशन. रेगुलर एंड सर्टेन फी इज देयर बट इन्वॉल्व सम रिस्क. एक रेगुलर फीस होती है बट कुछ ना कुछ रिस्क रहता है. एंड इन द एम्प्लॉयमेंट नो रिस्क पे इज रेगुलर. हमें अपनी जहाँ हम काम करते हैं रेगुलर मिलेगा, कोई भी रिस्क उसमें नहीं होता, पे रेगुलर रहती है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. क्या हम इसमें अपना इंटरेस्ट या ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यस, बिजनेस में पॉसिबल है विद सम फॉर्मेलिटीज़. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ प्रोफेशन. जो सर्टिफिकेट हमारे नाम पे है, हमारे साथ है, हमारे पास उसकी ट्रेनिंग एक्सपर्टीज़ है, तो हम ही उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इट इज़ नॉट एबल टू ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट. द लास्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट. कल भी बताया था कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है. कुछ गाइडलाइंस जो हमें मिलती हैं. नो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ रिक्वायर्ड. इसमें ज़रूरत नहीं होती. And need to follow code of conduct as per their professional bodies. We need to follow all code of conduct or guidelines as given by the professional bodies. And in employment, norms of behavior laid down by the employees to be followed. जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें बोला है, कंपनी ने बोला है, उसके अकॉर्डिंगली हम सब कुछ फॉलो करेंगे. सो दिस इज़ द कंपैरिजन फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, nature of work, qualification, return or reward, capital invested, risk of return, transfer of interest, and last one is code of conduct. And after that I'm going to discuss, we will learn that all these are the economic activity, but firstly we will have to consider business activity. Business is also an economic activity as we all know, but we will have to start with its function or characteristics. So before that I'm going to tell you what is business activity. Business refers to any occupation wherein people regularly engage in an activity with the view to earn profit. हम किसी भी रेगुलर एक्टिविटी में इंडल्ज है एक प्रॉफिट कमाने के लिए. इट में कंसिस्ट ऑफ क्या क्या हो सकता है, इसमें हम क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. प्रोडक्शन और परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जस्ट टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ अदर पीपल इन द सोसाइटी इन रिटर्न टू अर्न सम profit. There are two definitions that laid down some famous personalities. According to Lewis H. Hannay, business is an human activity directed towards producing or acquiring health through buying and selling of goods. And according to the James Jeffson, economic activity performed to earn some profit termed as business. वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक एक्टिविटी इकोनॉमिक तभी बनती है जब उसमें हमें रिटर्न पे कुछ प्रॉफिट या कुछ मिल रहा होता है. सो वो कहता है बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करते हैं जस्ट टू अर्न सम प्रॉफिट. And after that we will have to consider some functions of the business activity. A variety of functions are performed by business enterprises of which the major ones are. एक बिजनेस को सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट उसमें से कुछ मेजर हैं. सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फाइनेंस, आपको पैसा चाहिए. उसके बाद प्रोडक्शन चाहिए, फिर आपको उसको बेचना कैसे है, और आपके पास जो पर्सन्स आपने एम्प्लॉय किए हैं आसपास ताकि काम रेगुलर चलता रहे, तो उसके लिए हम एक अलग
डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है नेम्ड एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ये सभी फंक्शंस एक बिजनेस को परफॉर्म करने ही करने पड़ते हैं। दिस आर द मेजर वन, इसके साथ एडिशंस हो सकते हैं बट दिस आर द मेजर वंस। फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग फंक्शन रिलेटेड विद द मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये किससे रिलेट है? फंड्स को यूटिलाइज करना प्रॉपर, जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ पे फंड्स का यूज़ करना और उनको मोबिलाइज करना, उनसे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करना फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए। उसके बाद प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और क्रिएशन ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट मार्केटिंग, हमने फाइनेंस अरेंज कर लिया, गुड्स बना ली, अब उनको बेचना भी तो है। एक्टिविटीज फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बायर एट अ डिजायर्ड प्लेस, प्राइस एंड टाइम। जहाँ ज़रूरत है, जितने प्राइस में ज़रूरत है और जिस टाइम पे ज़रूरत है, चीज़ों को अवेल कराना, दैट ऑल आर इंडल्ज इन द मार्केटिंग फंक्शन। And human resource management ensures the availability of workers having necessary skills for performing various tasks in enterprises। आपको वर्कर्स की भी ज़रूरत है हर एक सीट के लिए, हर एक पर्टिकुलर काम के लिए जितनी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें इंश्योर करना है, एक कंफर्मेशन देना है कि वर्कर्स अवेल रहेंगे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो दिस 4 आर द फंक्शंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। And the last topic for the today is nature of business activity। क्या nature है business activity की? In short, creates utility in goods and services, उनको convert करता है, उनको provide कराता है customers को, so it creates utility in goods and services। aims to make money and satisfy consumers। main aim क्या होता है? पैसा कमाना और customer को satisfy करना। प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को प्रोड्यूस करता है या उनकी ट्रेडिंग करता है। प्रोक्योर्स मीन्स ट्रेडिंग करना, खरीदना बेचना। गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स रिस्क इन ट्रांजैक्शन, इन सब में रिस्क रहता ही रहता है। सो बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट्स यूटिलिटी जस्ट टू aims to make profit and satisfy consumers, produces and procure goods and services, involves risk in the production. And on Monday we will learn about the concept or characteristics of business activity. Thank you.